مصر کے اندر ایک حکیم بہت تیزی کے ساتھ شہرت پانے لگا۔ وقت کے ساتھ ساتھ اس کی شہرت ایک قبیلے سے پورے شہر کے اندر پھیل گئی اور پورے شہر سے پوری سلطنت کے اندر پھیلنے لگی، اور اس کی شہرت کے چرچے اتنے ہونے لگے کہ اس کی شہرت کے چرچوں کا شور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے دروازے پر جا پہنچا۔ اس حکیم کی شہرت ابھی سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ تک نہیں پہنچی تھی، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے اندر ایک نوجوان کام کرتا تھا، اور اس کا کام سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں اندر داخل ہونے سے پہلے لوگوں کو مخاطب کرنا ہوتا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے محل کے اندر تشریف لائے تو بآواز بلند کہتا، اے لوگو، سلطان صلاح الدین ایوبی تشریف لا رہے ہیں، اور لوگ اس کی پکار سن کر فوراً اپنی نشستوں پر کھڑے ہو جاتے اور سلطان کا استقبال کرتے۔ جب اس حکیم کی شہرت اس نوجوان تک پہنچی تو وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اس حکیم کے بارے میں معلوم کرنے کے لیے نکل پڑا۔ وہ ایک چوراہے سے گزرا تو وہاں لوگوں کا ہجوم لگا ہوا تھا، اور لوگ آپس میں کہہ رہے تھے کہ یار، وہ حکیم تو بڑا ہی ماہر اور اچھا انسان ہے، وہ جس کو بھی جس مرض کی دوا دیتا ہے وہ چند دنوں کے اندر صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تو اتنے میں ایک بوڑھا بزرگ کہنے لگا کہ میری ایک پڑوسن تھی جو کہ دمہ کی مرض سے مر رہی تھی، لیکن جب اس کا بیٹا اس کو حکیم کے پاس لے کر گیا تو اب وہ عورت بالکل صحت یاب ہو گئی، ایسا لگتا ہے کہ اس کو سانس کی مرض تھی نہیں۔ تو اتنے میں چوراہے میں موجود لوگوں میں ایک اور آدمی کہنے لگا، ہاں ہاں یار، میرا بھائی بھی ایک قریبی رشتہ دار بہت بیمار تھا، اور جب اس کو وہ فلاں حکیم کے پاس لے گئے تو اس حکیم کے کچھ ایسی دوا دی کہ وہ دوا پیتے میرا وہ رشتہ دار ٹھیک ہو گیا، اور وہ حکیم اتنا ایماندار اور اتنا نیک انسان ہے کہ وہ اس کو جتنی بھی فیس دی جائے وہ خاموشی سے لے لیتا ہے، کبھی اس نے کسی سے رقم کا معاوضہ نہیں کیا۔ یہ سن کر وہ نوجوان بڑا حیران ہو گیا اور چوراہے سے تھوڑا فاصلے پر کھڑا اس حکیم کے بارے میں باتیں سننے لگا۔ وہ اس انتظار میں تھا کہ اسے مزید حکیم کے بارے میں کچھ پتہ چل سکے۔ تو اتنے میں تمام لوگوں نے خاموشی اختیار کی اور انہوں نے کوئی اور موضوع پر باتیں کرنا شروع کر دی۔ اس نوجوان نے سمجھ لیا کہ اب یہاں مجھے اس حکیم کے بارے میں مزید کچھ پتہ نہیں چل سکتا، لہٰذا میں خود ہی جا کر ان سے اس حکیم کے بارے میں پوچھتا ہوں کہ آخر وہ ایسی کون سی دوا دیتا ہے کہ اس کے پاس ہر مرض کا علاج ہے، اور میں ایسا حکیم تو اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا جو اپنی فیس بھی نہیں لیتا۔ جب وہ نوجوان چوراہے میں موجود لوگوں کے پاس گیا، اس نے جاتے ہی سلام کیا تو لوگوں نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ تو اتنے میں اس نوجوان نے پوچھا، اے لوگو، کیا تم میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ نوجوان ایک عام آدمی کے لباس میں تھا، اور اس نے اس وقت شاہی لباس اتار کر محل میں ہی رکھ دیا تھا تاکہ کسی کو اس پر شک نہ ہو۔ اس میں سے ایک آدمی نے کہا، ہاں بیٹا، بتاؤ تمہیں کیا مدد چاہیے؟ تو اس نوجوان نے پوچھا، میری ماں بہت بیمار ہے اور میں اس کو پورے شہر کے حکیموں کے پاس لے کر گیا، لیکن وہ صحت یاب نہیں ہو سکی۔ میری ماں کے علاوہ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ آپ مہربانی کر کے کسی اچھے حکیم کا مجھے پتہ بتا سکتے ہیں تاکہ اس کے پاس اپنی ماں کا علاج کروا سکوں؟ اس نوجوان کی یہ باتیں سن کر وہ آدمی کہنے لگے، بیٹا، تم بالکل صحیح جگہ پر آئے ہو۔ ہم آپ کو ایک ایسے حکیم صاحب کے بارے میں بتاتے ہیں جو وہ آپ سے ایک سکہ بھی نہیں لے گا اور آپ کی ماں کا ایسا علاج کرے گا کہ وہ چند ہی دنوں کے اندر بالکل ٹھیک ہو جائے گی، اور تم ہمیں دعائیں دو گے۔ یہ سن کر نوجوان بڑا خوش ہو گیا اور کہا، حضور، وہ حکیم کہاں رہتا ہے؟ تو اس آدمی نے کہا، بیٹا، فلاں قبیلے کے ساتھ ایک خستہ حال جھونپڑی ہے، تم وہاں جا کر نجم حکیم کا پوچھنا، لوگ آپ کو اس جھونپڑی کے راہ بتا دیں گے۔ یہ سن کر وہ نوجوان اسی وقت اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اسی قبیلے کی طرف سفر شروع کر دیا۔ بہت دیر تک سفر کرنے کے بعد جب وہ اس قبیلے کے اندر پہنچا تو اس نے نجم حکیم کے بارے میں پوچھا، تو اس حکیم کا نام لیتے ہی ہر ایک آدمی اس حکیم کی جھونپڑی کا پتہ بتانے لگا۔ اس نوجوان نے قبیلے کے لوگوں سے نجم حکیم کے بارے میں پوچھا اور اس نے اس جھونپڑی کی طرف سفر شروع کر دیا۔ وہ راستے میں جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا کہ راستہ بالکل سنسان اور بیابان تھا۔ وہ حیران تھا کہ
इस कबीले में इतनी वसीअ जगह होने के बावजूद आखिर वो हकीम एक सुनसान जगह पर अकेला क्यों रहता है। उसके दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे थे। वो सोच रहा था कि क्या वो हकीम है या कोई नाउज़ुबिल्लाह। उसके पास जो भी जाता है वो उसका इलाज कर देता है। और हैरानी की तो बात यह है कि आखिर वो उस मर्ज के इलाज के पैसे भी नहीं लेता। आखिर वजह क्या है? आखिर उस हकीम का मकसद क्या है? क्या वो कोई वली अल्लाह है या फिर कोई जासूस है जो लोगों को धोखा दे रहा है? या फिर वो सोचने लगा, अगर वो कोई जासूस होता या फिर कोई गद्दार होता तो फिर वो लोगों को शिफायाब ना करता बल्कि लोगों के दरमियान में मौत को बांटता। बहुत सारे सवाल उसके दिमाग में आ रहे थे और इतने में उसका घोड़ा एक ऐसी जगह पर रुका जहाँ दो सिपाहियों ने उसको रोक दिया। सिपाही खड़े हुए थे और उसने उस नौजवान से पूछा, ए नौजवान, बताओ तुम यहाँ क्या करने आए हो? तो उसने कहा, मैं नजम हकीम के से मिलने आया हूँ। वो मेरी माँ सख्त बीमार है। मैंने सुना है कि नजम हकीम के पास हर मर्ज का इलाज है। तो उन दो सिपाहियों ने कहा, तुम बिल्कुल ठीक ठाक जगह पर आए हो। हकीम साहब अभी एक मरीज का मुआयना कर रहे हैं। तुम अपने घोड़े को फलां दरख्त के साथ बांधो और थोड़ी देर इंतजार करो। नौजवान ने अपना घोड़ा दरख्त के साथ बांधा और हकीम साहब का इंतजार करने लगा। चंद ही लम्हों के बाद कुछ औरतें उस हकीम की झोंपड़ी से बाहर निकली और फिर एक सिपाही उस नौजवान के पास आया जो जासूस बनकर उस हकीम की मालूमात हासिल कर रहा था। उसके पास आया और कहा, हकीम साहब आपको बुला रहे हैं। वो नौजवान जब अंदर गया तो उसको बड़ा अजीब व गरीब महसूस होने लगा। वो देखकर बड़ा हैरान होता था क्योंकि उस हकीम का हुलिया बड़ा ही अजीब व गरीब था। बिखरे हुए बाल, चेहरे पर झुर्रियां और काला रंग, आंखें सुर्ख लाल। और वो बड़ा हैरान था कि ये कैसा हकीम है जिसकी अपनी हालत इतनी बिगड़ी हुई है। लेकिन जब उस नौजवान ने हकीम की झोपड़ी के अंदर नजर दौड़ाई तो उससे बड़ी अजीबोगरीब बदबू आने लगी। वो अपने हवास पर काबू पाने के बावजूद भी खुद को काबू नहीं कर रहा था क्योंकि उस झोपड़ी में आने वाली अजीबोगरीब बदबू उसको बहुत तंग कर रही थी। तो इतने में उस नौजवान ने हकीम साहब को अपनी माँ के बारे में बताया कि मेरी माँ बहुत सख्त बीमार है। मैं उसको शहर के हर हकीम के पास लेकर गया लेकिन मेरी माँ शिफायाब नहीं हो सकी। बस आप आखिरी उम्मीद हैं। यानी कि उस नौजवान ने हकीम साहब की तमाम तारीफें चंद ही लम्हों के अंदर कर डाली। नजमो हकीम अपनी तारीफें सुनकर बड़ा खुश हुआ और उसने कहा, बेटा तुम्हारी हालत को देखकर लग रहा है कि तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ नहीं, लेकिन मैं उन हकीमों जैसा नहीं जो अपने मरीज की जेब को देखकर उसका इलाज करते हैं। मैं तुम्हें एक ऐसी दवा तैयार करके देता हूँ, जाकर ये दवा अपनी माँ को पिला देना। वो चंद दिनों के अंदर ठीक हो जाएगी। अगर तुम्हारी माँ ठीक हो जाए तो फिर उसको मेरे पास लेकर जरूर आना। ये सुनकर उस नौजवान ने कहा, हुजूर मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। अब वो नौजवान देख रहा था कि आखिर हकीम ने मुझे कैसी दवा दी है। आखिर वो ऐसी कौन सी दवा है जिसे पीकर मेरी माँ सेहतयाब हो जाएगी। हालांकि वो जानता था कि ना ही उसकी कोई माँ थी और ना वो बीमार थी। वो तो बस उस हकीम का पता लगाने के लिए झूठ बोल रहा था। चंद ही लम्हे गुजरे तो उस हकीम ने एक संदूक से एक शीशी निकाली जिसके अंदर सफेद रंग की दवा भरी हुई थी। उसने वो दवा उस नौजवान के हवाले करते हुए कहा, ये दवा लेकर जाओ अपनी माँ को पिलाओ और अगर इस दवा की तुम्हें ज़रूरत पड़े तो ये दवा मेरे पास आकर मुफ्त में ले जाना। नौजवान बड़ा हैरान हुआ कि यह हकीम आखिर कैसा हकीम है, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। अब वो नौजवान झोंपड़ी से निकल आया और सोचता हुआ अपने घोड़े के करीब आया। अपने घोड़े पर बैठा और घोड़े पर बैठकर तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था। वो सोचता हुआ जा रहा था कि आखिर उस दवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है। वो दिल में ही ये सोच रहा था, ये दवा ले जाकर मैं शाही तबीब को दिखाऊंगा और शाही तबीब ही इसका मुआयना करेंगे कि आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ मिलाई गई है। क्या वो दवा सेहत के लिए नुकसानदेह है या इसके अंदर कोई खतरनाक चीज़ तो नहीं मिलाई गई। वो इस सूरत हाल में अपने घोड़े पर तेज रफ्तारी के साथ जा रहा था कि अचानक उसकी नज़र एक ऐसी जगह पड़ी जहाँ बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। नौजवान ने अपना घोड़ा रोका और जब उस शोर वाली जगह पर पहुंचा
तो वहाँ उसे जाकर मालूम हो गया कि एक बूढ़ी औरत की तबीयत बहुत खराब है और वह मरने के बहुत करीब है। उसके मासूम बच्चे अपनी माँ को मरता हुआ देखकर चीख चिल्ला रहे थे। इसके करीबी रिश्तेदार भी उसकी मौत को देखकर रो पीट रहे थे। नौजवान को इतने में ख्याल आया कि जो दवा मेरे पास है, और मैंने लोगों से भी सुना है कि इस हकीम के पास हर मर्ज का दवा है, अगर यही दवा मैं इस बूढ़ी औरत को पिला दूं तो हो सकता है कि वह सेहतयाब हो जाए। तो उसने वह दवा अपनी जेब से निकाली और उन लोगों को कहा कि इसको ये दवा पिला दो, ये ठीक हो जाएगी। वो मरते क्या न करते। उन्होंने उस नौजवान से वह दवा ली और उस औरत को पिला दी, और चंद ही लम्हे गुजरे तो सब गांव वालों के पैरों तले से जमीन निकल गई। वो बड़े हैरान हो गए कि जो औरत मरने के करीब जा चुकी थी, वो चंद ही लम्हों के अंदर अपने बिस्तर पर उठ बैठी। ये सारा मंजर देखकर वो नौजवान भी हैरतज़दा नजरों से खड़ा था। तमाम गांव वालों ने उसको अपने कंधे पर उठा लिया और उसे कहने लगे कि तुम तो हमारे लिए फरिश्ता बनकर आए हो। नौजवान बड़ा हैरान था कि आखिर इस दवा के अंदर ऐसा क्या था कि ये चंद ही लम्हों के अंदर ठीक हो गई। वो अपने घोड़े पर सवार हुआ और सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह के पास पहुंचा। जब वह दरबार के अंदर पहुंचा तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह दरबार के अंदर तशरीफ ला चुके थे। उसके आते ही सुल्तान ने पूछा, ए नौजवान, आखिर क्या वजह थी कि आज तुम दरबार के अंदर नहीं थे, और आखिर इतनी देर कहाँ थे? तुम्हारे चेहरे पर इतनी परेशानी के आसार क्यों नजर आ रहे हैं? तो ये सुनकर वो नौजवान कहने लगा, हुजूर, ऐसी कोई बात नहीं। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह लोगों के मसाइल हल करने लगे। जब दरबार का वक्त खत्म हुआ तो फिर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने जब उस नौजवान का चेहरा मुरझाया हुआ देखा तो सुल्तान ने कहा, ए नौजवान, बताओ आखिर क्या वजह है? आखिर ऐसी कौन सी बात है जिसने तुम्हें इतना परेशान कर दिया? तो उस नौजवान ने सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को बताया, सुल्तान मर्दम, मैंने फलां कबीले के अंदर एक हकीम बहुत मशहूर हो रहा है, मैं उसके बारे में सुना कि उसके पास जो भी मरीज जाता है वो सेहतमंद हो जाता है, और हैरानी की बात तो ये है कि वो लोगों को मुफ्त दवाएं देता है। मैंने ही जब उस हकीम के बारे में सुना तो मैं उसके बारे में मालूम करने के लिए भेष बदल कर उसके पास पहुंचा। मैंने उसे कहा कि मेरी माँ बूढ़ी है और वो बहुत बीमार है, बिस्तर मर्ग पर है, तो मुझे कोई दवा दो। उसने मुझे मुफ्त में दवा दी और मैं वो दवा लेकर महल की तरफ आ रहा था, क्योंकि मैं जानता था कि अगर मैं ये दवा शाही तबीब के पास ले आया तो इस दवा के अंदर ऐसी क्या चीज़ है वो ज़रूर मालूम कर लेता। लेकिन सुल्तान मजिद, इत्तेफाक की बात है कि मैं रास्ते में मैंने एक औरत को मरते हुए देखा। मेरे पास और कोई रास्ता न रहा तो मैंने वो दवा उस औरत को पिला दी, और वो औरत सुल्तान मजिद, हैरानी की बात तो ये है कि वो मरने के करीब थी, वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह भी हैरत में पड़ गए और कहा, क्या तुम सच कह रहे हो? तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, क्या इस दुनिया में अभी भी ऐसे लोग हैं जो लोगों की मुफ्त में मदद करते हैं? तो उस नौजवान ने कहा, सुल्तान मर्दम, बेशक वो लोगों की मुफ्त में मदद कर रहा है, बेशक उसकी दवा से तमाम मरीज सेहतयाब हो जाते हैं। लेकिन सुल्तान मर्दम, जब मैं उस हकीम की झोंपड़ी के अंदर गया, मैंने उसको देखा, मुझे उससे कोई बड़ी ही अजीबोगरीब नफरत होने लगी। मुझे उससे बड़ा ही खौफ होने लगा। मुझे लगता है कि वो हकीम के देश में कोई जासूस है, वो बहुत खतरनाक इंसान है। ये सुनकर सुल्तान ने कहा, आखिर तुम ऐसा क्यों लगता है? उसने कहा, सुल्तान मर्दम, मेरी आपसे दरख्वास्त है, आप उस हकीम के बारे में पता करवाएं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने 3 सिपाहियों पर एक दस्ता तैयार किया और उन्हें उस हकीम की तरफ रवाना कर दिया। चंद दिनों के बाद जब वो दस्ता वापस लौटा तो सुल्तान ने पूछा, बताओ तुम्हें उस हकीम के बारे में क्या पता चला? तो उन्होंने कहा, सुल्तान मर्दम, हमने इर्द गिर्द के कबाइल से और इर्द गिर्द की आबादी से उस हकीम साहब के बारे में पूछा तो तमाम लोगों ने नजमो हकीम की तारीफ की। किसी ने भी उस हकीम के बारे में कुछ बुरा भला नहीं कहा। लगता है कि वो वाकई में एक नेक इंसान है। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह को वो नौजवान कहने लगा, सुल्तान मर्दम, ये तीनों सिपाही अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सके। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि आप इस मामले का गहराई से
जांच पड़ताल करवाएं। यह सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, ठीक है, कल सुबह तुम और मैं भेष बदलकर उस हकीम के पास जाएंगे और मालूम हो जाएगा कि आखिर उस हकीम में ऐसा क्या है, आखिर वो उस दवा के अंदर ऐसी क्या चीज मिलाता है कि वो हर मरीज सेहतयाब हो जाता है। चुनांचे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अगली सुबह 2 आदमियों का भेष बदला और उस नौजवान को अपने साथ लिया और अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो गए। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह घोड़े पर तेज रफ्तारी के साथ जाते हुए ये सोच रहे थे कि कहीं ऐसा न हो कि वो हकीम सच में ही नेक इंसान हो और मैं कहीं उसकी बदनामी का बाइस न बन जाऊं। अगर ऐसा हो गया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन अगर वो कोई गद्दार या किसी जासूस हुआ तो उसका अंजाम ऐसा इबरतनाक बनाऊंगा कि उसकी नस्लें याद रखेंगी। इसी सोच के साथ सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस करीबी साथी और उस नौजवान के साथ अपनी मंजिल पर पहुंचे। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब इस हकीम की झोपड़ी के करीब गए तो देखकर सुल्तान की हैरत की इंतहा न रही थी। एक खस्ताहाल झोपड़ी, लेकिन वहाँ लोगों का इतना ज्यादा हजूम था कि देखकर सुल्तान को हैरत हो रही थी। ऐसा लगता है कि काहिरा शहर का बहुत बड़ा हकीम है, लेकिन इसकी झोपड़ी को देखकर ऐसा लगता है कि ये बहुत ही कोई गरीब हकीम है, लेकिन असल मामला क्या है कोई नहीं जानता। अब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह जब उस झोपड़ी के करीब पहुंचे तो आगे से उस हकीम के सिपाहियों ने रोक लिया। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने मंसूबे के मुताबिक उन 2 सिपाहियों के सामने अपनी आगजारी बयान करना शुरू कर दी। सुल्तान ने कहा, मेरी बीवी सख्त बीमार है और मैं उसको शहर के बड़े हकीमों के पास लेकर गया, लेकिन उसको कहीं शफा न मिली और मैंने आपके हकीम के बारे में सुना तो मैं फौरन आपके हकीम के पास आया। मैंने सुना है कि आपका हकीम जो हकीम है वो बहुत अक्लमंद और माहिर इंसान है, इसके पास हर मर्ज का इलाज है। अपने हकीम की तारीफ सुनकर हकीम के सिपाहियों ने आम आदमियों के लिबास में मौजूद सुल्तान को कहा, आप थोड़ी देर इंतजार करें, बस आपकी बारी आने वाली है। चुनांचे सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह इंतजार करने लगे। चंद ही लम्हों के बाद एक सिपाही बाहर आया। उसने कहा, हुजूर, आपको हकीम साहब बुला रहे हैं। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने साथ में मौजूद शाही तबीब, जो कि वो भी आम लिबास में था, और अपने उस करीबी नौजवान को इशारा दिया और फिर उस झोपड़ी के अंदर चल पड़े। दरवाजे पर मौजूद सिपाही सुल्तान और उसके साथियों को अंदर ले गए, लेकिन जैसे ही सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अंदर दाखिल हुए तो सुल्तान के पैरों तले से जमीन निकल गई। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह हैरत में पड़ गए, आखिर असल मामला क्या है, क्योंकि उस हकीम की शोहरत के चर्चे सुनकर लोगों का वहां हुजूम लगा हुआ था। लेकिन जब सुल्तान ने उसकी झोपड़ी को देखा तो बहुत ही खस्ताहाल और उस हकीम का हुलिया देखकर सुल्तान की हैरत में मजीद इजाफा हो गया। उस हकीम का हुलिया किसी भिखारी से कम नहीं था। बिखरे हुए बाल, ज़र्द आंखें, सफेद दाढ़ी और उसकी आंखों में कोई शैतानियत नजर आ रही थी। सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने इशारे से शाही तबीब को कहा कि तुम हर हालात के लिए तैयार रहना, क्योंकि यहाँ कुछ भी हो सकता है। और इशारों में सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह अपने साथियों से हर लम्हे बात करते रहे। जब हकीम साहब फारिग हुए और वह सुल्तान से मुखातिब हुए, हकीम भी नहीं जानता था कि उसके सामने बैठा हुआ शख्स कोई आम इंसान नहीं, बल्कि मिस्र की सरजमीन का सुल्तान है। लेकिन वह हकीम सुल्तान को एक आम आदमी समझकर सुल्तान से मुखातिब हुआ और कहा, ए नौजवान, बताओ आखिर तुम क्या जरूरत मेरे तक खींच लाई। तो सुल्तान ने कहा, हुजूर, मेरी खूबसूरत हसीना जमील बीवी शदीद बीमार है। मैं हर हकीम के पास उसका इलाज करवाने के लिए गया। मैं उससे बहुत मोहब्बत करता हूँ और वह सेहतयाब नहीं हो रही। अगर आप मेरी बीवी का इलाज कर दें, मैं आपको जितनी भी आपकी फीस होगी देने के लिए तैयार हूँ। बदकिस्मती तो उस हकीम ने कहा, बेटा, पहले तो बताओ तुम्हारी बीवी को मर्ज क्या है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा कि मेरी बीवी को मिर्गी के दौरे पड़ते हैं और वो अचानक जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। तो ये सुनकर उस हकीम ने कहा, बेटा, ये तो कोई मर्ज ही नहीं, मैं तुम्हें एक बोतल दवा की दे रहा हूँ, जाकर अपनी बीवी को पिला देना। अगर जरूरत पड़े तो वो और दवा तुम खुद भी पी लेना। ये सुनकर सुल्तान हैरान हो गए। इस दवा की जरूरत मेरी बीवी को है,
फिर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा, हकीम साहब आप अपनी फीस बताएं। तो हकीम ने कहा, हुजूर मैं कोई फीस नहीं लेता, अगर आप चाहते हैं जो आपके दिल करे मेरे साथ में पड़े हुए कटोरे के अंदर डाल दें, और ये रकम भी मैं खुद खर्च नहीं करूँगा बल्कि मैं गरीबों में तकसीम करता हूँ। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह चंद लम्हों के लिए तो उस हकीम से बड़े मुतासिर हुए कि ये बड़ा ही अजीब इंसान है, लोगों से अपनी फीस भी नहीं लेता और अगर कोई मर्जी से दे दे तो वो भी गरीबों में तकसीम कर देता है। अब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने वो बोतल ली और अपने साथियों के साथ झोंपड़ी से निकल पड़े। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह झोंपड़ी में मौजूद सब चीज़ों को गौर से देख रहे थे। सुल्तान ने देखा कि उस झोंपड़ी में मौजूद कोई भी चीज़ इस बात की गवाही नहीं दे रही थी कि उसका ताल्लुक इस्लाम से हो। वो अपने रहने के एतबार से ही सब दिखा चुका था कि वो कोई जासूस है, लेकिन उसका कोई आम आदमी नहीं पहचान सकता था। सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह जब बाहर निकले तो वो बोतल सुल्तान ने शाही तबीब को देते हुए कहा कि इसको मुआयना करो, आखिर इसके अंदर ऐसी क्या चीज़ है। तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह के शाही तबीब ने फौरन उसका मुआयना किया तो उसे पीकर उसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा, सुल्तानी मज़हब ये तो गजब हो गया, अगर यही दवा ये सब लोगों में बांट रहा है तो आप ऐसा समझें कि वो दवा नहीं बल्कि जहर थी। सुल्तान ने कहा, मुझे तुम्हारी बात की समझ नहीं आ रही, आखिर तुम क्या कह रहे हो। अगर वो जहर होती तो सब लोग मर जाते, ना कि शफायाब हो जाते। तो सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह को शाही तबीब ने कहा, हुजूर इस दवा के अंदर दूध और शराब मिलाया गया है और उसके अलावा इसके अंदर एक ऐसी जड़ी बूटी मिलाई गई है जो आप किसी भी मरीज को दें तो वो आर्जी तौर पर सेहतयाब हो जाता है और उसकी बीमारी आर्जी तौर पर दब जाती है, लेकिन फिर वही छोटी सी बीमारी उसकी मौत का सबब बनती है। और ये हकीम भी लोगों की जिंदगियों के साथ खेल रहा है। ये सस्ती शोहरत पाने के लिए पूरी सल्तनत के अंदर अपना नाम तो बना रहा है, लेकिन लोग नहीं जानते कि इसकी ये दवा पीने के बाद चंद ही सालों के बाद उनकी मौत हो जाएगी। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त मियान से तलवार निकाली और उसी वक्त हमला कर दिया। सिपाहियों ने आगे मज़ाहमत की, लेकिन सुल्तान के साथ दोनों नौजवान बहुत बहादुर थे और चंद ही लम्हों के अंदर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह उस सिपाहियों को मारकर उस हकीम तक पहुँचे तो वह सुल्तान से मौत की भीख मांगने लगा। तो सुल्तान ने कहा, बताओ असल में तुम हो कौन, इसके बाद तुम्हें माफ़ किया जाएगा। तो उसने अपनी मौत के डर से कहा, मैं एक राहिब हूँ, एक पादरी हूँ और मेरा मकसद मुसलमानों के अंदर खौफ फैलाना था, क्योंकि जो मैं दवा लोगों को देता था उसके अंदर शराब होती थी और जो भी मरीज शराब पीता वो फिर उस दवा का आदी हो जाता। और इस तरह जब मैं यह काम शुरू किया बाज़ारों के अंदर शराब बहुत तेज़ी के साथ बिकने लगा, क्योंकि जो एक बार शराब पी लेता है वो हर हाल में दोबारा पीता है। और इस तरह मैं अपने मकसद में कामयाब हो रहा था, लेकिन आप मुझे न पकड़ते तो मैं चंद ही सालों के अंदर इस पूरे इलाके में लोगों को नशेई बना देता और ये इलाका हमारे बादशाह के लिए बहुत अहम था। और हमारा बादशाह जब इस इलाके में मौजूद लोगों को नशे का आदी बना लेता तो उस पर हमला करके ये सारा इलाका फतह कर देता और आपसे ये सारा इलाका छीन लेता। ये सुनकर सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसी वक्त उस राहिब यानी कि पादरी का सर कलम कर दिया। और फिर पादरी का सर कलम करने के बाद सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने उसका सर बादशाह को तोहफे में भिजवा दिया। और इस तरह सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अक्लमंदी बहादुरी से सिर्फ 2 सिपाहियों के साथ उस पादरी को अंजाम तक पहुंचा दिया और पादरी का ड्रास फाश हो गया। तो आज की वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में इजहार ज़रूर कर दिया करें। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। अल्लाह हाफिज़।